Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and today we are going to learn the lecture number 10th, which is completely based on the induction and synchronous motors, and I am going to cover the complete science behind that. ये synchronous motor किस तरह से काम करता है, induction किस तरह से काम करता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हो गए, और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये सिंक्रोनस और इंडक्शन मोटर का कितना यूज हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। सो इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू कवर ऑलमोस्ट all the things which is required. So first one which we are going to understand, let us take a overview. First one is what? The introduction, we will complete it, principle of operation and efficiency and performance, ideal applications where we are using the synchronous and induction motors, advantages, disadvantages, and we will summarize. So what is exactly synchronous motor or induction motor? Let us start from the induction. So will be easy to understand because I think synchronous motor is the upgraded version of induction motors because the back-end principle is near about same. So induction motor is nothing but first of all it is a synchronous type motor, okay, and we are using alternating current AC to activate it, where the electric current required to produce a torque is obtained by electromagnetic induction. So means what? And these types of motor are working on the principle of electromagnetic induction. So for us now it is more important to understand what is exactly electromagnetic induction, what are the principles. So quickly just revise it. So that principle is given by the scientist named Michael Faraday in 1831. It is very easy, we already learnt in class 11th or 12th. And this is the foundation of many modern devices like generators, transformers, electric motors which we are using in electric vehicle currently. And according to this law or a principle, when a conductor experiences a changing in magnetic field and an electromotive force EMF is induced. What does it mean? Let us understand with this example. So this is nothing, it is a coil, we can see here, and this is a magnet. N pole is this side and S pole is, we know the magnetic field lines will come from this side and will enter to S. N से S की तरफ इनका मोशन होता है, फील्ड लाइन्स हमेशा N से S की तरफ चलती हैं, एंड इस कॉइल को हमने एक एमीटर से लगा दिया है, कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे जब मैग्नेट इस डिस्टेंस पे है तो फील्ड लाइंस यहाँ से निकल तो रही है एन के पास से, लेकिन ये इस कॉइल के अंदर नहीं जा पा रही है, यहीं से इधर लौट रही है। सो दैट मीन्स इस कॉइल तक कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं पहुंच रही है, इस वजह से यहाँ पे हमें कोई करंट नहीं मिल रहा है। दूसरा केस अगर हम देखते हैं कि जब हमने इसको मूव करके यहाँ से इसके समीप लाया, जैसे ही इसके पास लाया तो क्या हुआ, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी वो पास कर गई इस कंडक्टर से, और जैसे ही कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास की तो अमीटर ने करंट डिटेक्ट किया। सो ये वही हुआ, इसी को बोलते हैं हम लोग इंडक्शन। ओके, आई होप आपके ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग समझते हैं, थोड़ी और डिटेलिंग लेते हैं इसकी। देखो मजा तभी आएगा जब पूरा समझ में आता है अच्छे से। सो इंडक्शन सिर्फ वजह नहीं है, देखो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी पता होना चाहिए, हमें फील्ड भी पता होना चाहिए, समझ रहे ना सारा कुछ। तो फ्लक्स का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि जो सपोज हमारे पास एक ये मैग्नेट है, ये अपने चारों तरफ जिस एरिया में जहां तक ये फोर्स या मैग्नेटिक मटेरियल्स को, सब्सटेंसेस को इन्फ्लुएंस कर सके, ये उसका फील्ड होता है ना, ये उसी का एरिया होता है। तो इसीलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि द एरिया अराउंड द मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्सेस कैन बी ऑब्जर्व्ड रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हिच शो इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से ज़्यादा पास होती हैं, ज़्यादा नंबर में, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है,
और फील्ड लाइंस अगर कम है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है। फ्लक्स क्या होता है, कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर एरिया से, सरफेस एरिया से पास कर रही हैं, हम लोग उसे फ्लक्स बोलते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि फ्लक्स कंडीशन क्या होती है कि द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी पैरेलल टू द सरफेस। इस कंडीशन में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं फील्ड के पैरेलल हो गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर था, यहाँ पे आप देखेंगे ये पैरेलल हो गया हमारा जो सरफेस था, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो गया क्योंकि कोई भी फील्ड लाइन इस सरफेस से होकर पास नहीं की। ओके, और फिर यहाँ पे देखते हैं जब हमने उसको थीटा एंगल पे टेंड कर दिया है, टिल्ट कर दिया थोड़ा सा, तो अब मैग्नेटिक जो फ्लक्स था कम तो हुआ लेकिन पास कर रहा था, थोड़ा फील्ड यहाँ पे बन रहा था, तो हमारा फॉर्मूला आता है बी ए कॉस थीटा। सो अगर फ्लक्स की हम बात करें तो फ्लक्स हम लिखेंगे बी ए कॉस थीटा, और इस बी ए कॉस थीटा में बी इज द फील्ड हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ए इज द सरफेस एरिया, और कॉस थीटा जो है एंगल हो गया। अब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, 90 डिग्री पे, है ना। साइन 90 तो 1 होता है और कॉस 90 0 होता है, तो कहने का मतलब है कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है जब ये एंगल 0 होगा। अब एंगल यहीं पे 0 होता है नहीं, गॉट इट और नॉट। तो कॉस थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ये क्या है। हम यहाँ पे हमें प्योरली ऐसा फील्ड और वो चाहिए कि जहां से मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास कर सके, समझ गए। अब उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि इस केस में कि मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा फॉर्मुलेट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और समझते हैं कि इसके आगे की कहानी क्या है। फैराडेज लॉ ने जो लॉ दिया था उसको हम जरा मैथमेटिक्स में लिख लेते हैं, सो दैट मोटर में हम लोग उसे इंप्लीमेंट कर सके, चाहे सिंक्रोनस में चाहे इंडक्शन मोटर में, दोनों जगह पे काम में आने वाला है। और देखो इस वीडियो के बाद ना आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें कंसेप्ट भी है और फिर इसमें एप्लीकेशंस भी हैं, दोनों चीजें हो जाती हैं। लेक्चर्स का मतलब ही यही होता है। मैथमेटिकली व्हाट वी आर राइटिंग, ईएमएफ इज इक्वल टू ई माइनस डी फाई बी बाई डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फ्लक्स हम कह सकते हैं, या ईएमएफ कह सकते हैं उसको, है ना। सो हियर डी फाई इज इक्वल टू क्या होता है वो पहले से हमें पता है, दैट इज द फाई बी इज नथिंग बट द फ्लक्स, फ्लक्स इज द बी ए कॉस थीटा। हमें थीटा पता ही है क्या होता है, फाई क्या होता है, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन फील्ड एंड नॉर्मल टू द लूप, ओके। एंड डी फाई वी बाई डी टी इज नथिंग बट इट इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाती हैं चीजें अपने। और फिर अगर हम इसे, ये थोड़ा सा आगे निकल गया, जस्ट अ मिनट, लेंज ने इसी लॉ में बताया था, ये जो माइनस साइन आता है ना, दैट इज द सिंबल ऑफ इट इज अपोज द रीजन। ये उस रीजन का अपोज करता है जिसकी वजह से स्वयं आया है, प्रोड्यूस हुआ है। सो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करंट इन सच दैट इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस्ड इट। उसी फ्लक्स का अपोज करता है जो इसे प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं और इसे समझने की कोशिश करें अगर बेहतर तरीके से कि ये किस तरीके से काम करेगा, तो इंडक्शन मोटर्स में हम अब टाइप्स देखते हैं। पहले फंक्शन समझ लेते हैं क्या क्या होता है। इसके पास एक स्टेटर है, एक रोटर है। स्टेटर आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, ये पूरा जो इसकी केसिंग कवरिंग है सब कुछ रुका हुआ है। और ये जो इसका रोटर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी एक कवरिंग हुई है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायरल केज बोलते हैं इसको हम लोग, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्क्वायरल केज। सो अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि व्हेन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द स्टेटर वाइंडिंग्स, स्टेटर वाइंडिंग, इट क्रिएट अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसके पास जैसे ही करंट आता है ना, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहां इसके चारों तरफ क्रिएट हो जाता है, चारों तरफ। या अगर आप बड़े हिसाब में देखें तो अगर ये हमारा स्टेटर है तो आप देखेंगे ना इसके चारों तरफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। इधर एन है, इधर एस है, एन है, एस है, एन है, ऐसे चारों तरफ पोल है, क्रिएट हो जाता है। और जब इसका इंटरेक्शन इसके रोटर के साथ होता है तो रोटर रोटेट करता है। कैसे रोटेट करता है हम आगे इसके प्रिंसिपल में समझने वाले हैं। अब आप यहां पे देखिए, हमने इसको क्या दिया, 3 फेज सप्लाई दिया हमारे इस स्टेटर की वाइंडिंग्स को। जब हमने सप्लाई दिया तो बहुत तेजी से क्या करेगा, यहाँ पे
भाई मैग्नेट को जब करंट मिलेगा तो रोटेशन होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, ये बहुत तेजी से रोटेट करेगा, है ना। तो और स्टेटर वाइंडिंग्स पे करंट आएगा, ईएमएफ जनरेट होगा, सॉरी रोटेशन तो हमारे नीचे वाले रोटेशन पार्ट में होगा। अब इसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे देखेंगे इसका एक दूसरा व्यू हमने दिखाया हुआ है कि ये इसी को हम लोग बोलते हैं, ये हमारी स्टेटर वाइंडिंग्स हो गई इसके ऊपर, और इसी के बीच में जो ये शाफ्ट लगा हुआ है इस पर ये केज लगा होता है। अब ये ध्यान से समझना है, स्क्वायरल केज हम लोग इसे बोलते हैं क्योंकि स्क्वायरल का जो गिलहरियों को पकड़ने के लिए जो कवर आती है ना, ये उसी तरीके का होता है, इसलिए इसका नाम स्क्वायरल केज हो गया। और ये कभी भी ऐसे सीधी नहीं बनती है, ठीक है ना, बिकॉज मोशन होता है ना, तो सिंक्रोनाइज होने के लिए ये सर्टेन एंगल पे बनी होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुआ बहुत तेजी से, ईएमएफ आया, और इसको किसी तरीके के डीसी वोल्टेज की जरूरत नहीं पड़ती है सिंक्रोनस मोटर की तरफ। सिंक्रोनस मोटर को क्या है, डीसी वोल्टेज की जरूरत पड़ती है जब वो चलता है। तो यहाँ पे जब करंट तेजी से आएगा तो ये हमारा एक कंडक्टर है, फुल्ली कंडक्टर आप ये मानो, है ना। ये अब ये यहाँ पे एंड पे जो रिंग्स लगी हुई हैं वो इस साइड और इस साइड को जोड़ देती हैं, कनेक्ट कर देती हैं। तो जब हम इसको इस शाफ्ट के अंदर लगा देते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं, सपोज ये एन और एस है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्रिएट हो रही है ना, उसके अंदर से होके पास करने लगती है। जब इसके अंदर से होके पास करेंगे तो आपको पता है इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, और जब इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, इसके ऊपर कपल लगने लगता है, टॉर्क लगेगा तो ये रोटेट करेगा अंदर तेजी से। ओके, जब ये रोटेट करेगा तो घूमना शुरू हो जाता है आराम से। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद हम आते हैं स्लिप। क्या होता है स्लिप? बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। स्लिप इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड द स्टेटर स्पीड मैग्नेटिक फील्ड एंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द रोटर। रोल क्या होता है इसका? इसेंशियल फॉर द इंडक्शन ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर बिकॉज इट अलाउड टू जनरेट इंड्यूस करंट इन द। अगर स्लिप नहीं होगा तो इंड्यूस करंट जनरेट नहीं होगा दोनों के बीच में। सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है? सिंक्रोनस स्पीड एट विच द मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स एंड इट कैलकुलेट बाय n इज इक्वल टू 120 इंटू एफ बाई पी। हम लोग इसे इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। f इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी एंड p इज द नंबर ऑफ पोल्स, नॉर्थ और साउथ पोल कितने हैं, कितने मैग्नेट, कितने बार्स लगाए रहे। रोटर स्पीड इज द एक्चुअल रोटर स्पीड हो जाता है। स्लिप कैलकुलेशन के लिए हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि सपोज हमारे पास 4 पोल का मोटर है और सिंक्रोनस स्पीड अगर हमें कैलकुलेट करनी है ns, तो हम लोग सिंपली क्या ले लेते हैं 120, ओके, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ले लिया है, डिवाइड बाई 4, 1500 आरपीएम आ गया, और रोटर स्पीड सपोज वी हैव 1450 आरपीएम, तो स्लिप निकाल लेते हैं 3.33% की स्लिप आ जाती है। तो बहुत आसान है, इंटरव्यूज में पूछा जाता है स्लिप क्या है भैया, कैसे काम करती है। इंडक्शन मोटर बेसिकली सिंगल फेज मोटर होते हैं, आप जानते हैं 3 फेज मोटर्स हैं, 3 फेज मोटर्स ये भी आप जानते हैं, इनके एप्लीकेशन है आप समझिए इंडस्ट्री में पंप्स, कंप्रेसर, कन्वेयर बेल्ट, 3 फेज मोटर्स होते हैं, इनके यूजेज जो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। HVAC हो गया, फैंस हो गया, ब्लोअर्स हो गया, इन सब जगह पे। एडवांटेजेस क्या है? सिंपल डिजाइन है, कॉस्ट इफेक्टिव है, रिलायबल परफॉर्मेंस है, अच्छी परफॉर्मेंस है, मेंटेनेंस की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, तो काफी बेहतर है हमारे लिए। अब सिंक्रोनस मोटर क्या होता है? सिंक्रोनस मोटर इज अ टाइप ऑफ AC मोटर where the rotor rotates at the speed that is synchronized with the frequency of supply current. Okay, and let us understand the detailed overview of this. So it has also the stator and rotor. ये बाहर का जो आप केसिंग देखते हो ये इसका स्टेटर है, ठीक है, और ये अंदर जो है ये जो N और S आपको पोल दिख रहे हैं दो इस टाइप के, ये इसका रोटर होता है बेसिकली। इसके रोटर के लिए हमें चाहिए रहती है डीसी सप्लाई। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि हम इसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज करते हैं, ये हमारे एक एप्लीकेशन में, इसीलिए हमने इसको लेक्चर में शामिल किया है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है, हम कंट्रोलर्स पे चले जाते पढ़ने के लिए, है ना। तो ये डीसी सप्लाई हमें चाहिए रोटर को देने के लिए, ओके, और एसी सप्लाई, 3 फेज एसी सप्लाई हमें चाहिए इसके स्टेटर को देने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है कि एक टाइम में हमें डीसी सप्लाई भी देनी है और एसी सप्लाई भी देनी है। एसी सप्लाई जो है वो इसके स्टेटर को दिया जाता है सो दैट हमारे पास वही सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सके यहाँ पर,
और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है यहाँ पे तेजी से, है ना, चारों तरफ, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आप सामने से देखें तो इस टाइप से दिखेगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, इसको थोड़ा साफ करते हैं, एक मिनट। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, लेट अस अंडरस्टैंड ये किस तरीके से काम करेगा यहाँ पे, है ना, इसकी वर्किंग समझना बहुत जरूरी है। तो वर्किंग के लिए आप यूं देखिए कि जैसे ही यहाँ पे सप्लाई आएगी ना, तो हमने बताया कि ये n है और इधर सपोज ये n है, अब इसको रिपेल करेगा बेचारा, ठीक है ना। अब इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, मान लेते हैं इधर जो घूम रहा है ऊपर ना, ये हाई स्पीड होता है, हाई स्पीड मतलब फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है, और ये वाला तो अभी स्टेशनरी कंडीशन में है, ठीक है। एक चीज और आप यहाँ पे याद रखोगे, ये सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं है ना, नो सेल्फ स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट मोटर ये नहीं होता है। अब क्या होगा, देखो एक कंडीशन लेते हैं जो हमारी अगले स्लाइड में है, एक मिनट, ये वाला देख लेते हैं, यहाँ पे ज्यादा समझ में आएगा। फेज सप्लाई यहाँ से है, मान लेते हैं करंट आया यहाँ पे थे स्टेटर पोल्स पे, तो ये वाला पोर्शन जो है इस पे करंट है बहुत तेजी से और वाइंडिंग्स है, तो क्या करेगा, ईएमएफ जनरेट होगा। और ये जो इसका एस पोल है यहाँ पे, ये इसके एस पोल को या एन पोल को ये इधर डिफ्लेक्ट करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिएंट पोल रोटर, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, सेलिएंट और नॉन सेलिएंट, पहले हम वर्किंग समझ लेते हैं। ये इसको इधर डिफ्लेक्ट करेगा, और ये इतना ज्यादा इसका आरपीएम होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का रोटेशन का डायरेक्शन है ना, ये बहुत तेजी से है, ऐसे चलेगा, तो ये इसको इसके पहले पुश कर पाए और ये रोटेट करे, ये क्रॉस कर जाता है इसे, मतलब एस से एन पहुंच जाएगा, फिर इसको खींचेगा, तो ये बेचारा एक बार इधर जाता है, एक बार इधर आता है, ऐसे ऐसे करता है, मींस वाइब्रेट करता है जब इसको सप्लाई मिलती है। डीसी भी दे दिया आपने, ये भी दे दिया, अब ये बेचारा सिर्फ वाइब्रेट करता है यहाँ पे। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमने इस्तेमाल किया डैम्पर वाइंडिंग का। डैम्पर वाइंडिंग ने क्या किया, ये जैसे स्क्वायरल वाइंडिंग थी उसमें ना, इसमें डैम्पर वाइंडिंग होती है, बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं हम लोग, इस टाइप से मान लो, ये दो इंड रिंग्स हो जाती है, यहाँ पे रिंग्स लगी हैं, और इसके बीच में पूरा हाई कंडक्टिंग मटेरियल से इसकी कवरिंग हो जाती है, ठीक है। और ये कंटिन्यूअस नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि हमने कोई लेयर बना दिया, ऐसे ही हमने जाल टाइप का इसको बना देते हैं, और उसके बाद जब हम इसको रोटर में लगा देंगे, तो अब क्या होगा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से आएंगी ना, वो इसमें करंट इंड्यूस करेंगी तेजी से, ठीक है। तो ये क्या होता है, एन जो है एस के साथ में लॉक हो जाता है, लॉक होगा मतलब लॉकिंग कंडीशन में आ जाएगा। अब ये दोनों सिंक्रोनाइज्ड हो जाते हैं, जो एन है ना यहां के एन से नहीं कनेक्ट है, ठीक है ना, एस जो है यहां के एन से कनेक्ट कर दो, इस एन को यहां से एस से, अब ये दोनों लॉकिंग कंडीशन में आ जाएंगे, है ना। अब इस अपोजिट पोल है तो दोनों को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ये लॉक कंडीशन में आ जाते हैं। जब लॉक कंडीशन में आ जाएंगे तो कंटिन्यूअस मोशन में रहेंगे पूरी तरह से, ठीक है। तो ये इसकी उनकी कंप्लीट वर्किंग है, आप समझ लीजिए। मेन रोल होता है इस डैम्पिंग वाइंडिंग का। अगर ये निकाल देते हैं तब ये सिर्फ वाइब्रेट करेगा, आप चलाओगे तो सिर्फ वाइब्रेशन होगा इसके अंदर, ये तेजी से घूमेगा नहीं, वाइब्रेशन होगा। जब जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है इस वाइंडिंग्स में क्रॉस करता है, पास करता है तेजी से, तब इसकी कंडीशन जो है बढ़िया हो जाती है, बेहतर हो जाती है, ये इसमें लॉक हो जाता है। लॉक होने के बाद दोनों एक साथ घूमते हैं। अब इसकी हेल्प से क्या होता है, इसमें हाई टॉर्क मिल जाता है हमें, है ना। तो एक तो हो गई सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो हमें करंट से मिल रही है, ठीक है, 3 फेज एसी सप्लाई से। सिंक्रोनाइजेशन होता है द रोटर विच इज एक्साइटेड बाय डीसी, हमने आपको बताया कि डीसी करंट इसको मिलता है, looks with the rotating magnetic field at the stator and rotate at the same speed known as synchronous speed। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, ये और ये दोनों, ये वाले और ये वाले, तो इसी स्पीड को हम लोग सिंक्रोनस, और ये कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं लॉकिंग। क्या बोलते हैं इसको, लॉकिंग कंडीशन है, तब ये रोटेट करते हैं लॉक होकर, फिर कोई जर्क नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो सिंक्रोनाइजेशन है वो प्रोसेस, और जिस स्पीड पे ये लोग चलते हैं मिलकर के, वो सिंक्रोनस स्पीड हो गई। कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला वही है जो पीछे हमने बताया था आपको। अब हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इसके एडवांटेजेस वगैरह देख लेते हैं। पहले टाइप्स समझ लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर है, नॉन सेलिएंट पोल टाइप सिंक्रोनस मोटर, एंड दीज हैव ए सिलेंड्रिकल रोटर एंड आर टिपिकली यूज्ड इन हाई स्पीड एप्लीकेशन, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
और ये जो डैम्पर हमने बताया आपको, ये वाला ये वही है, सेलिएंट पोल इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, नॉन सेलिएंट पोल। और उसके बाद सेलिएंट पोल टाइप्स, दीज हैव अ रोटर विद प्रोट्रूडिंग पोल्स एंड यूज्ड इन लो स्पीड एप्लीकेशंस। अब हम इसका एडवांटेज देखते हैं। एक तो कांस्टेंट स्पीड देता है, लोड कुछ भी रहे, आप खुद समझो, जब एक बार सिंक्रोनाइज हो गए, ये सिंक्रोनाइज होने के बाद लॉक हो गए, लॉक होने के बाद इसमें फर्क नहीं पड़ता कि लोड आपका आपके मोटर पे या शाफ्ट पे कितना लोड आ रहा है, ये कंटिन्यूअस स्पीड को मेंटेन रखते हैं। तो इससे क्या होता है, इनको हाई टॉर्क मिल जाता है। टॉर्क बहुत ही, अब व्हीकल के लिए टॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट है आरपीएम के साथ साथ में। तो हाई एफिशिएंसी इसके पास, पावर फैक्टर करेक्शन जो है वो भी हाई है। और इसके एप्लीकेशंस पे अगर हम लोग गौर करें तो इंडस्ट्रियल मशीनरीज में होती हैं, यूज इन एप्लीकेशन रिक्वायरिंग प्रिसाइज मोटर कंट्रोल, जहाँ पे है स्पीड कंट्रोल हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पंप्स में भी, कंप्रेसर में भी चलता है, बहुत सारे फैंस में भी लगा हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, employed in electric vehicles, drive trains for the better control। अब हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हमें इसके अंदर थोड़ा जाना पड़ा और समझना पड़ा। आपको भी समझाया। पावर जनरेशन यूज्ड इन जनरेट टू कन्वर्ट मैकेनिकल पावर इनटू द इलेक्ट्रिकल पावर। अब ये जनरेटर में भी इस्तेमाल होता है और मोटर में भी इस्तेमाल होता है, आप समझ सकते हो, क्योंकि काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ठीक है, दोनों जगह। डिफरेंसेस फ्रॉम द इंडक्शन मोटर, अब ये क्रूशियल है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो सिंक्रोनस मोटर्स रन एट द सिंक्रोनस स्पीड वाइल इंडक्शन मोटर रन एट द स्पीड स्लाइटली लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड। वहां पे लॉकिंग नहीं होती है, यहां पर लॉकिंग होती है, इसलिए वहां यहां पे सिंक्रोनस है, वो सिंक्रोनस से थोड़ी कम स्पीड पे चलती है। सिंक्रोनस मोटर्स रिक्वायर डीसी एक्साइटेशन फॉर द रोटर वेयर एज इंडक्शन मोटर्स डू नॉट। हमने बताया था आपको कि इंडक्शन मोटर में किसी तरीके की डीसी सप्लाई नहीं दी जाती है। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यूज में पूछ लिए जाते हैं। और आपको स्टार्टिंग मेथड क्या होता है, ऑक्सिलरी मोटर, एंड ऑक्सिलरी मोटर इज यूज्ड टू ब्रिंग द सिंक्रोनस मोटर क्लोज टू इट्स सिंक्रोनस स्पीड बिफोर स्विचिंग टू द मेन सप्लाई, while in damper windings we are using to provide the starting torque and bring motor near to synchronous speed। अभी हमने बताया डैम्पर वाइंडिंग यहाँ लगी होती है, वहां पे ऑक्सिलरी मोटर है। ठीक है, और हम लोग वी आर यूजिंग इट इन वेरियस एप्लीकेशन ड्यू टू दियर एबिलिटी मेंटेन कांस्टेंट स्पीड एंड इम्प्रूव इफिशियंसी। काफी सारे फैक्टर्स हैं जो हम लोग इस पे काम करते हैं। अब फ्रेंड्स, इफ यू आर लुकिंग फॉर द लाइक स्टडी मटेरियल्स एंड सर्टिफिकेशन प्रोसेस, सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। Okay, on WhatsApp you can just message, the people will reply you what exactly you are looking for here, and continue to learning from my YouTube channel. Please share, subscribe and like this video, and this is really going to be helpful for you all. I am going to record all the lectures of electric vehicles from 0 to advanced level, and this was the lecture number 10th। and in next class we are going to understand some more types of motor। हमने आपको बताया था कुछ एक्सियल अदर्स मोटर्स हैं, उस पर काम कर रहे हैं हम कि कितना बेहतर तरीके से बना सकते हैं, दियर वर्किंग प्रिंसिपल एंड what exactly if you are looking, you can suggest in the comment box कि what the next content you want to understand, you want to learn। Definitely I will try to give that one, but make sure I'm going to cover the entire thing। Okay friends, thank you so much, hope you enjoyed this video। We will meet in next lecture very soon। Thank you, bye।